wait, just 1 second. I'll have to recap this. The third topic we are going to discuss over here is representing organic molecules, in which the first way of representation of molecules, organic molecules, is via molecular formula, which is like below. For methane, we have a molecular formula of CH4, ethane C2H6, propane C3H8, butanol C4H9OH, butanoic acid is C3H7COOH. Now, this molecular formula way of representing molecules has some limitations. These limitations are well reflected when we are dealing with isomers, different isomers. Isomers are going to be compounds having same molecular formula, but different structural formula. Same molecular formula, but different structural formula. So that means we need some other stronger tools to represent our organic molecules. The molecular formula is definitely not the final thing which can help us to solve the unique name representative or unique representative of a compound. ठीक है? Molecular formula is not the way which can handle the unique representation of a compound. ठीक है? And therefore we require something more advanced. Inorganic के लिए भी ये काफी सारे inorganic compounds के लिए help करता है, but then inorganic में भी it fails sometimes. ठीक है? Nevertheless, we have more robust way of describing molecules. The next one is dot structure, Lewis dot structure. The butanoic acid कौन सा है वो? फर्स्ट वाला डायग्राम है, सेकंड वाला? फर्स्ट वाला ये किया है ना, एरो मार्किंग तो टेक किया था नहीं, ये टिक किया और बोला कि ये ब्यूटेनोइक एसिड नहीं है. अच्छा, सॉरी, माय मिस्टेक, इसको क्रॉस कर देता हूँ. दिस इज नॉट ब्यूटेनोइक एसिड. ठीक है. बीट इज you have Lewis dot structure. Lewis dot structure. See, Lewis dot structure में हम लोग क्या करते हैं? Apart from representing the atoms being attached with a particular atom, we also tend to represent the electrons being shared. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक मॉलिक्यूल अगर हम लोग लेते हैं, जैसे मे बी मैं लेता हूं C5H12, it is pentane. Now it can have multiple isomers. That is one thing. We are considering the normal pentane. For normal pentane, how are we going to write it in Lewis dot structure? C. We are going to have this one electron and one electron being bonded. So C and C are going to be there, followed by the third C, followed by the fourth C, followed by the fifth C. And then you are going to have at each carbon 4 electrons, and these 4 electrons satisfying single bond formation at all centers. ठीक है. सो ये बनाना हमारे लिए बहुत, मतलब इंफॉर्मेशन तो कुछ रिच इंफॉर्मेशन ये हमें प्रोवाइड करता है, बट इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. एक मॉलिक्यूल बनाने में हमारा अच्छा खासा टाइम जाएगा और अच्छा खासा दिमाग भी जाएगा. ठीक है, कि कहीं पर कुछ काउंटिंग मिस्टेक तो नहीं हो रही है. तो हाइड्रोजन का एक्स है ना? हाँ, हाइड्रोजन का एक्स है. ठीक है. इस तरह की अलाइनमेंट प्रॉब्लम्स भी हमको देखनी पड़ती हैं, और ये काफी सारा स्पेस भी हमारा लेता है. ठीक है. सो देयर आर मेनी ऑड थिंग्स रिलेटेड टू दिस, बट it is sometimes very good also.
जैसे जहां पर भी हम लोग अटकेंगे ना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स वगैरह में, we will immediately fall back to Lewis dot structure for help. एक लिमिटेड फ्रेमवर्क में, मतलब जहां पर हम अटक रहे हैं बस उसी का हम लेविस डॉट देखेंगे, बट वी आर ऑलवेज गोइंग टू फॉल बैक टू दिस इन ऑर्डर टू सॉल्व इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? सो जहां पर हमको डिटेल्ड पिक्चर लेना होता है किसी एक पर्टिकुलर एटम या किसी एक पर्टिकुलर साइट का ड्यूरिंग द रिएक्शन, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस या इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट्स हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट हो रहे हैं, तो इट इज दिस स्ट्रक्चर which is going to help me to solve or depict that those changes precisely. ठीक है, तो this is going to be useful when I have to look deeper into things during the reactions. कैसे मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, एक एटम से दूसरे एटम के ऊपर शेयरिंग कैसे हो रही है, ये सारी डिटेल पिक्चर जब देखनी होती है मुझे, then we fall down to or we fall to Lewis dot structure. ठीक है. The third one is, बोलो किसका, क्यों? नहीं, वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो था या लेविस ये जो था थियरी, दैट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स. दैट वाज द केस. बना नहीं सकते, बिल्कुल बनेगा, ठीक है, बट वो स्टेबल क्यों है ये नहीं बता पाता है, क्योंकि इसकी बेसिस क्या थी कि पेयरिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की, तब बॉन्ड फॉर्म होगा. ठीक है ना, और बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है और साथ में अनपेयर्ड भी इलेक्ट्रॉन है, तो बोलते हैं कि ये इसके हिसाब से वो क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर लेस स्टेबल. ठीक है, दैट मींस दे आर हाईली अनस्टेबल. तो अब हाईली अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में कंपाउंड स्टेबल कैसे है, दैट इज समथिंग which it is unable to explain. ठीक है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज डैश लाइन स्ट्रक्चर. डैश लाइन स्ट्रक्चर के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं, जैसे फिर से मैं इसी पेंटेन को लेता हूँ, नॉर्मल पेंटेन को. ठीक है, लाइन आ जाएंगे, नॉर्मल पेंटेन. सो C5H12 कार्बन कार्बन, here all the bonds are going to be represented by a line. If it is single, single line. If it is double, double line. If it is triple, triple line. That is what called dash line structure. Or another example could be क्या, हाँ बता रहा हूँ. आई एम टेकिंग दैट एग्जाम्पल. 1 2 3 4. ब्यूट 2 इन ऑल. ब्यूट 2 इन ऑल. ठीक है, this is going to have something like this: C, double bond C, single bond C, O and H.
H H H H H H and H. The formula for it is C4 3 2 5 2 7 7 and OH. ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड का भी देखना है तो यू कैन सी दैट मे बी ब्यूट, बताऊंगा, ब्यूट 1 आइन, ठीक है, this is going to be C4H6. So this is going to be represented as C, C, C and triple bond C and H. और इसके चारों वैलेंसी फुल हो गए हैं तो इस पर कुछ भी नहीं रहेगा। ये H एक यहाँ पर एक H और यहाँ पर 3 H. This is going to be dash line structure. The next one is condensed structure. सर उसका नेमिंग ऐसे क्यों है, मतलब ब्यूट 1 एंड वो नेमिंग पे मत जाओ अभी, नेमिंग का तो अभी पूरी कहानी होनी है चालू। So you don't have to bother about that. You have to bother about dash line represent कैसे करते हैं, ठीक है ना। वो नेमिंग तो you will come to know, I'll tell you ना, don't worry. Next one is condensed structure. Condensed structure में क्या होता है जैसे अभी ऊपर जो बनाया मैंने ब्यूट 2 इन ऑल, ठीक है, और उसका हम लोगों ने डैश लाइन स्ट्रक्चर देखा, उसी का सेम मॉलिक्यूल का if I am going to draw this condensed structure, I am going to draw CH3, a single bond between these two, CH, and a double bond CH, and a single bond CH2, and then OH. ठीक है, this is going to be condensed structure. Most of the time we are either going to deal into condensed structures or the next one which I am going to draw. That's called bond line structure. Bond line structure. ठीक है. So I haven't noted dash line structure, please. Okay. 1 second. Is it visible? Note कर लो. Yes, हाँ सर. करता हूँ, उसको साइड में लेके जाता हूँ. ठीक है. सर हो गया. ओके. एक किसी और का कंडेंस बना लेते हैं, जैसे ब्यूटीन 1 आइन है. इस बार पेंट
2 आइन का बनाते हैं। ठीक है सर एक बार हम लोग ट्राई करें क्या? हाँ हाँ बिल्कुल ट्राई करो। इफ यू वांट टू यू कैन श्योर। किसका? पेन टू आइन का। इसका आएगा C5H8। तीन ही कार्बन दिखा रहे हो ना, 5 होने चाहिए ना। 1 2 3 4 5। हाँ ठीक लग रहा है, सही है, गुड। तो 2 है मतलब वो सेकेंड कार्बन के बाद वाला होगा ना 2 बॉन्ड पे, पर डबल, 2 और 3 के बीच में, हाँ 2 और 3 उसके के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ट्रिपल बॉन्ड कर, हाइड्रोजन थर्ड वाले से उड़ा और फर्स्ट वाले पे एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन डालो। ठीक है ठीक है। अगर आप लोग नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दिस इज नॉट समथिंग जो अभी हमने डिस्कस किया है। जिनके क्लास में हो गया है कॉलेज में, वो लोग थोड़ा सा आगे कूद रहे हैं, सो डोंट सर वरी। हो गया। हाँ गुड गुड, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो परेशान नहीं होना है। दिस इज नॉट समथिंग जो कि हमने डिस्कस किया है अभी तक। ठीक है, तो पेंटाइन इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक, इट्स पेंट टू आइन या टू पेंटाइन। CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH2 एंड CH3। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। हाँ परफेक्ट परफेक्ट, गुड। So that is the D. Then comes the next type, that is called bond line structure. Bond line structure. Okay. Bond line structure is something which we are really curious about. ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे 1 पेंटाइन का मुझे ये पेंट टू आइन का करना है, या पेंट टू आइन को 2 पेंटाइन भी बोलते हैं। सो सॉरी, if I am talking about pent to ine, एक मिनट, for pent to ine, bond line is going to look something like this. यहाँ पर हर ये पॉइंट्स जो है, the connecting points or the end points are a carbon atom. So this is one carbon atom, this is another carbon atom, this is third carbon atom, this is fourth carbon atom, this is fifth carbon atom. Is that visible? Yes sir. Yes, sir. Okay.
और अभी अब पॉइंट ये होता है कि चूंकि 2 पर आइन है, मतलब 2 और 3 पर बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो जहां पर मल्टीपल बॉन्ड्स रहेंगे उनको हम लोग मल्टीपल बॉन्ड्स डिनोट करते हैं। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड्स कैसे डिनोट करेंगे, तो इन दो सेंटर्स के बीच में वी आर गोइंग टू पुट, कहीं पर अगर डबल लाइन सिर्फ रहता, डबल लाइन की जरूरत होती, मतलब डबल बॉन्ड होता, वी वुड हैव पुट जस्ट वन लाइन अपार्ट फ्रॉम। सो सिंगल बॉन्ड, सिंगल लाइन कनेक्शन मींस देयर इज अ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा व्हेनेवर यू आर, और कंडेंस्ड वन। ठीक है, ये वाला क्या होता है, दिस इज द मोस्ट सिंपलिस्टिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग मॉलिक्यूल्स। इट गिव्स ऑल प्रिसाइज इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और बॉन्डिंग कैसी है, एटम्स कैसे कैसे पोजीशंस है, ये सिर्फ एक ही चीज नहीं कर पाता है, वो है स्टीरियो आइसोमर्स जब होते हैं ना, उसको एग्जैक्टली डिपिक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, बाकी सारे इंफॉर्मेशन ये कैरी करता है, एंड बहुत ही मतलब ऐसे समझो, लेस स्पेस ऑक्यूपाइंग, लेस एफर्ट टेकिंग, yet reveals most of the, I mean all the information except three-dimensional arrangement of atoms. ठीक है, so वो डॉट कार्बन है ना? क्या क्या, हाँ डॉट्स, ऑल द डॉट्स आर कार्बन। सो बेसिकली जितने भी एंड पॉइंट या कॉर्नर पॉइंट्स रहेंगे, दे ऑल आर कार्बन एटम्स। ठीक है, इसमें ये होता है व्हेनेवर वी आर मूविंग फ्रॉम बॉन्ड लाइन टू ये कंडेंस्ड फॉर्मूला और एनी अदर फॉर्मूला, हमें ये देखना और सोचना होता है, क्योंकि कार्बन हर जगह पे टेट्रावैलेंट रहता है, 4 वैलेंसी उसकी रहती है, तो कार्बन की चारों वैलेंसी फुलफिल्ड है कि नहीं। ठीक है, कार्बन की जितनी वैलेंसीज बॉन्डिंग के साथ, कार्बन के साथ बॉन्डिंग में फुलफिल नहीं हो रही है, इसका मतलब हुआ वो उतने हाइड्रोजन्स के साथ वो जुड़ा हुआ है। सो जैसे इस फॉर्मूला को अगर हम देखते हैं पेंट टू आइन को, तो यहाँ पर ये वाला कार्बन के ऊपर जैसे 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन एटम्स, पहला कार्बन एटम का कितना वैलेंसी फुलफिल हुआ है इस स्ट्रक्चर में, सिर्फ एक। इसका मतलब क्या हुआ, इस कार्बन के पास टोटल 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। ठीक है, सेकेंड वाले कार्बन की बात करें तो उसके चारों वैलेंसी फुलफिल हो गए हैं, 3 बॉन्ड फॉर्म किए हैं राइट वाले के साथ, 1 बॉन्ड फॉर्म किया है लेफ्ट वाले कार्बन के साथ, मतलब सेकेंड वाले कार्बन ने एक सिंगल बॉन्ड बनाया है कार्बन 1 के साथ, और 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाया है कार्बन 3 के साथ। कार्बन 3 जो है वो 3 ट्रिपल बॉन्ड्स बनाया है कार्बन 2 के साथ, एंड 1 सिंगल बॉन्ड बनाया है 4 के साथ, तो उसकी भी टेट्रावैलेंसी फुलफिल हो गई। यानी इन दोनों कार्बन पे, कार्बन 2 एंड कार्बन 3 पर देयर आर नो हाइड्रोजन एटम्स। तो कंडेंस फॉर्मूला अगर हम लिखने जाएंगे तो उस समय ये दोनों के ऊपर हम लोग कोई भी हाइड्रोजन एटम्स नहीं डालते हैं। ठीक है, 4 की अगर बात करते हैं तो 4 के ऊपर टेट्रा वैलेंसी में से 2 वैलेंसी इसकी फुलफिल्ड है बॉन्डिंग से, 2 खाली है, वो दोनों कौन ऑक्यूपाई करेगा, हाइड्रोजन। ठीक है, और 5th वाले का फिर से क्या है, सिंगल वैलेंसी फुलफिल्ड है, यानी 3 हाइड्रोजन एटम्स वहां पे अटैच्ड रहेंगे। इज दैट ओके? यस, प्रिसाइजली प्रिसाइजली। अभी बेंजीन ही लिखने वाला था मैं, अगला बेंजीन का नहीं, हाँ, सो बेंजीन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो है, दैट हैपेंस टू लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और उसके बाद ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, और बाद में जाकर के हम लोग पढ़ेंगे कि रेजोनेंस होने की वजह से ये दोनों इस तरह से रहते हैं, और इनका हाइब्रिड जो होता है वो इस तरह का हो जाएगा। ये दोनों इंटरचेंजिंग होते हैं और दोनों का मिला करके हमारा बन जाता है इस तरह का, ये सर्कल बन जाता है।
ठीक है, सो इट फॉर्म्स दिस स्ट्रक्चर। यहाँ पर कहीं पर भी हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को शो नहीं कर रहे हैं किसी भी स्ट्रक्चर में। इसका मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन है नहीं, हाइड्रोजन इज वेल देयर एवरीवेयर। जहां पर भी कार्बन की वैलेंसी फुलफिल नहीं हो रही है वहां हर जगह हाइड्रोजन है, वहीं फुलफिल करता है। ठीक है, सो जो बॉन्ड्स नहीं दिख रहे हैं वो किसके साथ फॉर्म कर रहा है, इट इज फॉर्मिंग विथ हाइड्रोजन। सो देर आर गोइंग टू बी, किसी भी स्ट्रक्चर में हम देखेंगे तो 6 हाइड्रोजन्स रहेंगे, क्योंकि हर कार्बन की 3 वैलेंसी फुलफिल हो चुकी है। ठीक है, इसका भी 3, 2 इसके साथ, 1 इसके साथ, 3 हो गया, तो चौथा वाला हाइड्रोजन। इस कार्बन का 1 इसके साथ, 2 इसके साथ, इस कार्बन का 2 इसके साथ और 1 इसके साथ, इस कार्बन का 1 इसके साथ, 2 इसके साथ, इसका 1 इसके साथ, 2 इसके साथ और 1 इसके साथ। सो ऑल ऑफ देम आर हैविंग 3 वैलेंसीज फुलफिल्ड, इसलिए चौथी वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन के साथ फुलफिल होएगी। दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। The 6th one is known as Daswich structure. ठीक है, हाँ, सो फॉर एग्जाम्पल ये बेसिकली डैशवेज स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये हमको हेल्प करता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट्स को प्रिसाइजली 2 डायमेंशनल वे में देखने में। ठीक है, वी हैव अ डैश लाइंस एंड अ वेज लाइन। वेज लाइन इज समथिंग लाइक दिस, ट्रायंगल रहेगा जिसको कि हम लोग फिल करके रखते हैं। दिस इज अ डैश एंड sorry, this is a wedge and dashes are like this. आगे रहे क्या क्या, सॉरी, हाँ, डैश जो होता है वो बैकवर्ड रहता है, और हाँ, और वेज जो है वो फॉरवर्ड रहता है, टुवर्ड्स अस, कमिंग टुवर्ड्स अस। ठीक है, वेजेस सो दैट the group which is attached with it is coming towards us or out of plane, out of plane, that is towards, and dash का मतलब होता है going into the plane, that is away from एक मिनट रुको तो तुम लोग, मतलब yes. See, let us see, like हमारे पास एक कंपाउंड है C, 2 1 3 1 4, ठीक है, स्टार्ट हो गया। सो आई हैव अ कंपाउंड नेम, अगेन ब्यूटेनॉल ही ले रहे हैं, बट इस बार मैं 2 ब्यूटेनॉल ले रहा हूँ। ठीक है, द कंपाउंड इज 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, या ब्यूटेन 2 ऑल, इसको लिखते हैं ऐसे भी, ब्यूटेन 2 ऑल। So how is it going to look like is, सेकेंड वाले कार्बन पर, दिस इज सेकेंड वाला कार्बन,
You are going to have one CH3 on the right, one CH2 and then CH3. This can also be written together as C2H5 on the left, then H atom on the top and OH atom on the bottom. ठीक है. अब इसका 3-dimensional arrangement जो होएगा, that may look something like this, where CH3 and C2H5 are coming towards us. CH3 and C2H5 are coming towards us, whereas OH and H are going away from us. ठीक है. So CH3 or C2H5 into are, the out. are coming towards us out of the plane. ठीक है. And H and OH are going away from us into the plane. ठीक है. अबे मैं बता रहा हूं ऐसा है. मैं अभी कैसे पता चलेगा तुमको? अभी कुछ पता ही नहीं है, तो मैं तो खाली बता रहा हूँ कि ऐसे भी बता सकते हैं. सब कुछ पहले ही दिन जान जाओगे. धीरज रखो, धीरे धीरे सीखो. हमें ये पता करने में कौन सा अंदर आ रहा है कौन सा बाहर जा रहा है, आधी जिंदगी निकल जाती है साइंटिस्ट की. तब जाके फाइनली उनको पता चल रहा है कि कौन बाहर आ रहा है कौन अंदर आ रहा है, कंफर्मिटी के साथ. और तुमको 2 मिनट में चाहिए कि सर कौन सा बाहर आ रहा है कौन सा अंदर जा रहा है, हमको पता कब चलेगा? हाँ, उसके पहले 50 चीजें सीखनी है तुमको. सर मतलब अगर हम लोग उसको साइड व्यू से देखेंगे तो मतलब ये थोड़ा पिरामिड टाइप दिखेगा. हाँ, क्योंकि ये कार्बन जो है ना टेट्राहेड्रल ही है ना. दिस कार्बन इज टेट्राहेड्रल, तो वो एक्चुअली इट्स लाइक दिस ओनली ना. जैसे हम लोग नॉर्मली कार्बन को ऐसे ये 4 ड्रॉ करते हैं ना टेट्राहेड्रल वाला, तो ये भी ये कार्बन भी टेट्राहेड्रल है. और एग्जैक्टली वही चीज हम यहाँ भी ड्रॉ कर रहे हैं. इसमें से ये 2 जो होते हैं वो हमारी तरफ आ रहे होते हैं, और ये जो 2 हैं ये हमसे दूर जा रहे होते हैं. ठीक है. या फिर मे बी ये 2 हमारी तरफ आ रहे होंगे, तो ये 2 जो होंगे ये हमसे दूर जा रहे होंगे. कौन सा? अच्छा सॉरी. I'm sorry. ठहर जाइए, मैं अपनी रेंज भूल गया था. अबे रुको यार तुम लोग, ठहरो. इधर लिख रहा हूँ ना. हाँ इधर है, दिख रहा है. वेरी गुड. सी व्हाट आई एम सेइंग इज, कार्बन यहाँ ये और ये. ठीक है. जनरली ये दोनों जो होते हैं वो हमारी तरफ आ रहे वाले होते हैं, और ये दोनों हमसे दूर जाने वाले होते हैं. ठीक है. अब ये हमको पता कैसे चलते रहेगा? जिस व्यू में देखेंगे वो व्यू से हमको पता चलेगा. ठीक है. तो इस स्ट्रक्चर में ये दोनों हमारी तरफ आ रहे हैं और ये दोनों हमसे दूर जा रहे हैं. ठीक है. अब एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, and just try to see and guess whether they both are same molecules or different molecules. ठीक है. उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, रुक जाओ यार 1 मिनट ठहरो, मुझे बना तो लेने दो. ठहर जाओ, अपने ऊपर नहीं है सब कुछ, अपने ही ऊपर रहेगा. थोड़ी देर रुको. तुम लोग एक दूसरे को क्रिप करने में आधा से ज्यादा टाइम बिता दो.
रुक जाओ 1 मिनट, मुझे पहले सोच लेने दो। मैं बना रहा हूँ तो मैं भी सारी चीजें मुझे पता ही रहेंगी थोड़ी, मैं तो बस ऐसे ही बना रहा हूँ अभी, मुझे भी सोचना पड़ेगा थोड़ी देर। और तुम लोग भी सोचो 3 डायमेंशनली घुमा घुमा करके। सोच लिया? वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो तुम तो। अभी मैंने क्वेश्चन बताया, पूछा ही नहीं, आंसर पता है हम लोगों को। सही है बेटा, ऐसे तो बच्चे होने चाहिए। मन की बात मत बताओ। एक इंसान के मन की बात सुन सुन करके मैं परेशान हो गया हूँ। हाँ, अभी हम लोग के पास 4 स्ट्रक्चर्स मैंने बना दिए हैं ब्यूटेनॉल के, ठीक है। इनमें से कौन कौन से सेम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कौन दूसरे मॉलिक्यूल का है, ये हम लोग को सोचना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? नोइंग द फैक्ट दैट अंदर जाने वाले क्या है, डैश से रिप्रेजेंटेड है, और बाहर आने वाले वेज से रिप्रेजेंटेड है। You can take help of your all 4 pens if you have at this point of time, or you can take help of anything whatever you feel like, and try to think it holding them in your hand and seeing तो it literally। हाँ बोलो ना। ये ABCD ऑप्शंस है कि ये हाँ, 4 होते हैं? नहीं, अरे 4 ड्राइंग मैंने बनाई है, इसमें से कौन कौन सी ड्राइंग जो है वो सेम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, और कौन सी किसी डिफरेंट मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपको सोचना है अभी। या फिर ऐसा तो नहीं है कि चारों सेम ही मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी हो सकता है। इट्स पॉसिबल इन डिफरेंट व्यूज, ठीक है ना। ये बात एक्सरसाइज समझ में आ रही है सारे लोगों को? हाँ यस सर। वेरी गुड, जस्ट थिंक फॉर सम। यस, चारों दिख रहे हैं कार्बन हम लोगों को? कोई प्रॉब्लम नहीं है चारों कार्बन के दिखने में? नो सर। नाउ आई एम सेइंग maybe like we were taking these two as, एक जो है C2H5 है और ये वाला जो है ये CH3 है, CH3 C2H5, ये OH और ये H, ठीक है। ब्लैक वाला H, रेड वाला OH, ये CH3 और ये सॉरी C2H5 ब्लैक वाला ये और मार्कर, और ब्लू वाला मार्कर जो है CH3, ठीक है। अब जस्ट नीचे वाला मॉलिक्यूल जो है, इट इज रिवर्सल ऑफ दैट लाइक दिस, और मे बी वी कैन पुट इट लाइक दिस, ठीक है। सो हमारा ये वाला मॉलिक्यूल बन जा रहा है सेकेंड वाला। इज दैट ओके? अब हम लोग थोड़ा सा टिल्ट करते हैं इसको। I'm just tilting the position. I have not changed any of the components. Let us come at C. C में क्या है? अब फिर से हम लोग थोड़ा सा फिर से रिकैप करते हैं कौन सा एटम है मेरा। ये H है, ये OH है, C2H5 एंड CH3, ठीक है। अभी C वाले स्ट्रक्चर में क्या है? CH3 is going behind and OH is going behind. OH and CH3 are going behind, ठीक है। C2H5 सॉरी ये CH3 नहीं है, ये CH3 है। CH3 and OH are going behind, C2H5 and H are coming forward,
ठीक है, is it okay? It's another view of same molecule. I haven't changed any positions yet. Let us come on the fourth one. C2H5 is coming forward. C2H5 is coming forward and OH is coming forward. ठीक है, H is going backward and CH3 is going backward. It's the same molecule, right? I haven't changed any of the positions as of now. I'm just rotating it and viewing it from different angles, and I'm getting 4 different projections. Hello? Yes. ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल शेप है तभी कर पा रहे हैं ना, टेट्राहेड्रल जहां पर नहीं रहेगा वहां पर ये चीज होगा ही नहीं. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज 3 डायमेंशनल isomerism, stereo isomerism, that is possible only when this is there. The carbon, the central carbon is sp3 hybridized and all 4 segments attached to it are different. ठीक है, अगर वो नहीं रहेगा तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं होगा, और स्टीरियो नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा. जहां पर स्टीरियो की पॉसिबिलिटी आएगी, और देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे sp2 सिस्टम्स अगर रहते हैं, sp2 कार्बन, they can also create स्टीरियो आइसोमेरिज्म. हमने देखा था डबल बॉन्डेड कार्बन जो है चेन में जब रहते हैं, एक कार्बन दूसरे से डबल बॉन्डेड है और दूसरा तीसरे से डबल बॉन्डेड है, उस केस में एंड वाले जो होते हैं हाइड्रोजन एटम्स ऑड और इवन के हिसाब से चेंज करते रहते हैं पोजीशंस, राइट? परपेंडिकुलर प्लेन्स में आ जाते हैं. इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स रहे तो एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, तीसरा वाला ऑड वाला आ गया नंबर, तो दे बिकम प्लेनर. रिमेंबर, ऐसा किया था एक्सरसाइज हम लोगों ने ना केमिकल बॉन्डिंग में, ध्यान है कि नहीं? Am I making sense? So, see, 3 डायमेंशनल एनालिसिस पर हमको ये पता चल रहा है कि ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं एक ही मॉलिक्यूल के हैं. ठीक है, जस्ट व्यूड इन डिफरेंट डायरेक्शन. इसके ऊपर ऑब्वियसली हमें थोड़ा एक्सरसाइज और करना पड़ेगा. entire isomerism chapter is based on this, जिसमें structural part is hardly of 1 घंटे या 2 घंटे की चीज होती है. स्टीरियो आइसोमेरिज्म और एक और होता है, वो मेजरली टाइम कंज्यूम करता है हमारे आइसोमेरिज्म का. मतलब देयर आर 7-8 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म्स ऑल टुगेदर, जिसमें से पहले 5 जो होते हैं वो 1 घंटे में या 1.5 घंटे में खत्म हो जाते हैं. बाकी के 2 या 3 जो होते हैं दैट टेक अराउंड 4 to 5 लेक्चर्स टू कंप्लीट. लेक्चर्स टू कंप्लीट. ठीक है, फिर भी पूरी तरह से आप समझ जाओ, अगर आप खुद एफर्ट नहीं डालोगे तो नहीं समझोगे. डिस्पाइट ऑफ मी शोइंग ऑल द 3 डायमेंशन, यू विल स्टिल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स. सो दैट इज द थिंग, इट्स गोइंग टू टेक टाइम. दिस वाज जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ इट. सो इस टाइप की चीजें, चीजों को डिफरेंशिएट करने के लिए these ways and dash structures are the only way in our hand, and we have to master this in order to differentiate one molecule from the other, whether they are of the same, whether they are the same molecule or whether they are the different molecules. बात समझ में आ रही है? अब बेसिकली इनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं ये जब हम सीख लेंगे ना, तो फिर इट विल बी इजियर फॉर अस टू विजुअलाइज देम. मतलब पहले वाले का भी नाम लिखेंगे तो सेम ही नाम आएगा, दूसरे वाले का सेम नाम आएगा, तो सेम नाम आ रहा है मतलब सेम मॉलिक्यूल है. अलग नाम आने लगेगा तो अलग मॉलिक्यूल हो जाएगा. ठीक है, सो वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, वी विल कम इनटू दैट व्हेन वी विल बी डूइंग आइसोमेरिज्म आफ्टर नोमेनक्लेचर. जब हम आइसोमेरिज्म डील करेंगे then we will look at that. Is that okay? Yes, sir. एक दो छोटे क्वेश्चंस कर लो and then we will move on to the next thing.
draw bond line plus condensed structure for following. जो नहीं दिया रहेगा हाँ, दोनों में से एक जो मिसिंग होगा, एक फॉर्म दिया रहेगा और दूसरा फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो कंडेंस तो दिया हुआ है ना। हाँ, यहाँ पे कंडेंस दिया हुआ है, हो सकता है आगे बॉन्ड लाइन दिया हो, ठीक है। ये नोट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज पर चलो। नहीं मतलब तो बैठ के सो रहा था तू। हाँ तो नहीं आ रहा हूँ, परेशान मत। नोट कर लिए थे ना सारे लोग? सर Yes, क्वेश्चन sir. का हाँ हाँ सर। ठीक है। सर बिहार क्या बनना है G1? क्या क्या? सर G1 मतलब कैसे बनना है? ये ट्रायंगल है और एक बी आर लगा हुआ है उस पे। ओ हाँ
आई थिंक ये हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे, कोई इशू नहीं होनी चाहिए। सर सिर्फ ये और भी दिखा रहे हैं। हाँ ये और भी दिखा देता हूँ। एक सेकंड, स्क्रीनशॉट ले लो अथर्व। सर लेना था स्क्रीन। ले लिया? हाँ जी। ओके। सर इतना ही है। हाँ अभी तो फिलहाल इतना ही है, फटाफट कर लो। नहीं, ठीक है। So the final structures of A is going to look like 7 carbon skeletons with OH on the second carbon from left, double bond between fourth and fifth carbon from the left, and then at the end there will be C double bonded O and single bonded OH. B may it's again going to be 7 carbon skeleton with third carbon from left having double bonded O, and there will be a double bonded O, and there will be a double bond between the fifth and sixth carbon atom. Next is third one. Third one may again we have double bond between first, second, and third, fourth carbon, and then sixth and seventh carbon atom there will be a triple bond. Triple bonded carbon atom towards its left and towards its right is always joined by a straight line, and generally we prefer to put the triple bonded carbon atoms with their left and right carbon atoms attached to them on a straight line, because all the triple bonded carbon atoms will be sp hybridized, and sp hybridized carbon always forms only straight line bonds. So I have taken another example. This corresponds to the molecule. This corresponds to molecule CH2 double bond, CH single bond, CH2 single bond, C triple bond, C, CH2 and CH3. So over here, these two carbon atoms plus this and plus this, all these four are going to come on one straight line. How are we going to differentiate it? It's via, if this triple bond is extended from here to here, then it will be just one single carbon atom in between. That is, they are directly connected. If this is triple bond from here to here, but as the triple bond is between, I mean, it's just half the length or one third of the length. That means there is one bond over here, single bond, and another single bond is over here. ये कितने दूर में एक्सपैंडेड है, इसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि उसके लेफ्ट में या राइट में और सिंगल बॉन्ड्स हैं कि नहीं है, यानी और डिस्टिंक्टिव कार्बन हैं कि नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज if it is a 5 carbon chain with second and sorry 1 2 3 4 5 5 carbon chain with second and fourth carbon having double bonded O,
The first carbon will be CH3, second will be just C double bonded O followed by a CH2, then C double bonded O, then CH3. This is a cyclopropyl molecules, cyclopropyl bromine, yeah, cyclopropyl bromide. So the two carbons are going to have CH2, CH2. The one carbon with which Br is going to be attached is going to have only one hydrogen atom. This structure, and this structure are exactly the same. All three are the same structure. You can draw any of them and you are right. H, we can start from any of the carbon. Let's start from top. There will be one hydrogen atom attached to this, as this carbon atom is bonded by two carbon atoms, one with double bond, another with single bond. One of the valency is not satisfied, that will be satisfied by hydrogen. The other carbon will again have a single hydrogen attached to it, followed by a carbon with two hydrogens, followed by a carbon with again one hydrogen, as three of the valencies has been already satisfied, followed by another carbon in the ring, which is CH2 again. This will be bonded to CH and CH, which will again be bonded to a carbon having double bonded O, then CH3. Towards downside, it is going to be carbon double bonded O and NH2. In ith one, it is CH3, then O, then C double bond O, and which is bonded again to a carbon with which has C double bonded O and OCH3. This molecule can be depicted something like this. Okay. Now, next thing is we have to know something more about, or we need to know. सर 1 मिनट ऊपर जाओ ना खाली. कितना ऊपर, इतना से काम हो जाएगा? हाँ सर, वही यही देखना है. ओके. Basics of naming. Basics of naming. ठीक है. सपोज मेरे पास कोई अल्केन है, जैसे ये क्या है, मीथेन है. ठीक है, मीथेन. मीथेन में से एक कार्बन को अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया, आई रिमूव वन हाइड्रोजन फ्रॉम इट. ठीक है, रिमूव, क्या बचेगा? इट विल गिव CH3 and a khali valency. Now this thing is named after methane and it is simply called as methyl. ठीक है. Similarly, C2H5 और C2H6, इथेन में से एक हाइड्रोजन को हटाया मैंने, तो इथाइल बन जाएगा. तो it forms ethyl, C2H5. Propyl, it's again going to be it's C3H8 and it's going to form propane minus H. If I'm going to do, it's going to make C3H8 and it's going to be propyl. बट प्रोपाइल जब आता है तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं. अगर इसको एक्सपैंड, सर H80 रहेगा, H7 रहेगा, H7 रहेगा. हाँ, थैंक यू फॉर करेक्टिंग. ठीक है,
अब यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहला पॉसिबिलिटी ये बनता है कि CH3 CH2 CH3 में से हाइड्रोजन या तो इस कार्बन से निकला या इस कार्बन से निकला। अगर इन दोनों में से किसी से निकलता है तो इट विल फॉर्म समथिंग लाइक दिस। ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज नॉर्मल प्रोपाइल, एन प्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल प्रोपाइल। ठीक है, दूसरी चीज होती है दिस मिडिल वाला कार्बन कैन ऑल्सो लूज अ हाइड्रोजन। ठीक है, एंड स्टिल इट विल हैव C3H7 फॉर्मूला। मिडिल वाला कार्बन कैन लूज अ हाइड्रोजन and that will have this kind of structure CH3 CH CH3 and there will be a vacancy. ठीक है, this is going to be termed as isopropyl. कहाँ एक हाइड्रोजन? इसमें से नहीं, यहां से एक हाइड्रोजन हटाया, बट वो हाइड्रोजन मिडिल वाले कार्बन से हटाया, और यहाँ पे भी एक ही हाइड्रोजन हटाया, फर्स्ट वाले से हटाया या थर्ड वाले से, एंड कार्बन से हटाया। ठीक है, तो इट बिकेम नॉर्मल प्रोपाइल। ठीक है, आइसोप्रोपाइल। सो आइसोस, अभी और आइसोस में बताने वाला हूं, कुछ चीजें और हैं जो कि मैं डिस्कस करूंगा। सो आइसो इज अनदर कैटेगरी। हाँ बोलो सर, अगर राइट साइड एंड वाला निकला तो भी नॉर्मल प्रोफाइल ही आएगा। सो इफ आई एम गोइंग टू से यू ड्रॉ नॉर्मल पेंटाइल, नॉर्मल पेंटाइल कंडेंस्ड फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग फटाफट। नॉर्मल पेंटाइल फटाफट, फास्ट। कौन से कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा? साइड वाले से, टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल कार्बन विल लूज हाइड्रोजन, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी माय नॉर्मल पेंटाइल। आई होप वी अंडरस्टूड दिस। और अल्कीन से अगर हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट? अल्कीन माइनस हाइड्रोजन इज, सॉरी, अल्कीन माइनस हाइड्रोजन इज अल्काइल। अल्कीन माइनस हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? अल्कीन माइनस हाइड्रोजन इज अल्किनाइल। Sir, can you explain one above the current one? I could not see the screen clearly. Above one as in कौन सा देखना है तुमको? ये वाला प्रोपाइल वाला? प्रोपाइल वाला। देखो, प्रोपाइल वाले, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल में आई एम गोइंग टू कम अगेन, बट मैंने जस्ट बताया कि अगर साइड वाले कार्बन से हमारा निकलता है जब भी हाइड्रोजन ना, वी हैव नॉर्मल फॉर्मेशंस, एंड मिडिल कार्बन से अगर निकल रहा है तो इट हैज सम अदर नेम। ठीक है, दैट अदर नेम कुड बी आइसो, it could also be secondary in certain cases. We will discuss about that. We are going to discuss about that. ठीक है, तो वो एन प्रोपाइल है, वो किससे बना? एन प्रोपाइल प्रोपेन से बना। ये प्रोपेन। प्रोपेन, ये वाला फॉर्मूला, ये वही है ना? Is that okay? हाँ सर। This is normal propane. This is propane. And propane से साइड कार्बन से हमने हटाया तो it gave me normal propyl.
यानी किसी भी अल्केन से अगर हम हटाते हैं तो आई एम गोइंग टू गेट अल्काइल। ठीक है, अब वो आइसो होगा या नॉर्मल होगा। नॉर्मल अगर एंड कार्बन से निकाल रहे हैं तो नॉर्मल रहेगा, अगर किसी मिडिल वाले कार्बन से निकाल रहे हैं तो इट इज गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट, मे बी आइसो मे बी सेकेंडरी। आई विल डिस्कस दैट अगेन, मतलब अभी आ रहा है नीचे तो डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं जनरल बता रहा था कि अल्केन से हाइड्रोजन निकाला तो बन गया अल्काइल। अल्कीन से हाइड्रोजन अगर हम निकालते हैं तो इट विल बिकम अल्कीनाइल। अल्कीनाइल, ठीक है। जैसे इथीन, इथीन से नहीं प्रोपीन से अगर हम निकालते हैं हाइड्रोजन तो इट विल बिकम प्रोपीनाइल। प्रोपीनाइल, ठीक है। आई राइट दैट थोड़ा नीचे। और अल्काइन से अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? यस, इट विल बिकम अल्कीनाइल, सॉरी अल्काइनाइल। अल्काइनाइल, आइल, ई हटा करके आई। इज दैट ओके? अब जस्ट अ सेकेंड, एक एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज प्रोपेन, ठीक है। अब यहां से जब भी हाइड्रोजन निकलेगा ना, ये दोनों से हाइड्रोजन नहीं निकल सकता है, इन दोनों से, इसमें से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा जनरली, इससे निकलेगा। अगर इससे निकल रहा है ना तो इट विल बिकम अ डिफरेंट कंपाउंड ऑल टुगेदर, इट वोंट बी कंसिडर्ड एज प्रोपिनाइल। अरे इससे साइड वाले से, टर्मिनल वाले से, तो क्या बन जाएगा हमारा? CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज प्रोपिनाइल, ठीक है। सेमिन नहीं निकलेगा तो कुछ और बोलने लगेंगे उसको। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन हटाया, ये क्या है? ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन, ठीक है। इसका साइड वाला कार्बन हाइड्रोजन हटाएंगे, दिस इज ब्यूटीनाइल, ठीक है। अब लेकिन ये पूरा कंप्लीट नहीं है अभी, इसमें और भी कुछ चीजें हैं जो कि मैं बाद में बताऊंगा जब नेम करने लगेंगे। देन आई दिस विल बी टर्म्ड एज, यहाँ से ये एक्चुअली यहाँ से हाइड्रोजन हटाया है मैंने और यही किसी मेन चेन में पॉइंट ऑफ अटैचमेंट रहेगा। तो इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से मेरा डबल बॉन्ड कहाँ पे है? लास्ट में, थर्ड कार्बन पे, ठीक है। तो इसको जब हम नेम करेंगे तो हम नेम करते हैं ऐसे, ब्यूट 3 आइल, ठीक है। ब्यूट 3 आइल। हाँ, ये किसी और जगह पे अटैच्ड है तभी हमको इस तरीके से नाम करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हाइड्रोजन हटा करके ये साइड से आकर के जुड़ रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 3 मिथाइल हेप्टेन, यानी थर्ड पे मीथेन मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। वैसे ही दिस इज गोइंग टू बी, अगर हेप्टेन पर ये लगा हुआ है, हेप्टेन पर लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, हेप्टेन पर मे बी यहाँ पर लगा हुआ है, हेप्टेन या ऑक्टेन पर लगाते हैं। सो ये 4 5 नहीं, नोनेन पर लगेगा। तो रीजन है, मैं बता रहा हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5,
और मैं इधर भी डबल बॉन्ड रख दूं और इधर भी डबल बॉन्ड रख दूं। यहाँ पे डालता हूं मैं इसको 1 2 3 डबल। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर 1 2 3 और सॉरी 4 डालना है। तो यहाँ पर अभी और काफी चीजें आपको बतानी है बीच की। दिस इज गोइंग टू बी अ सब्स्टिट्यूएंट एंड दिस सब्स्टिट्यूएंट इज नथिंग बट दिस सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ब्यूटेनाइल सर। हाँ, ब्यूट 3 इनाइल। क्या हाँ सर वही ठीक है। क्योंकि इन जो है, देखिए जहां जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वहां से हम काउंट शुरू करते हैं और लेफ्ट साइड में हम जाएंगे तो थर्ड कार्बन के बाद इन है। ठीक है, उसमें जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ रखा है कि जिधर डबल बॉन्ड है उधर से काउंटिंग चालू करते हैं, वो रूल नहीं लगता है। काफी सारे नए रूल सीखने वाले हैं हम लोग, तो उसमें से ये एक रूल रहेगा सर। फ्यूचर तो में। वो रूल नहीं हो सकता क्योंकि हाइड्रोजन निकला या क्या? हाँ, दिस इज नॉट द मेन चेन। आपने जो पढ़ा था ना कि जहां डबल बॉन्ड हो वहां से लाइन शुरू करेंगे, या जिधर से वो नजदीक हो उधर से नंबरिंग चालू करते हैं, वो तब होता है जब आपका डबल बॉन्ड मेन चेन का पार्ट हो। ये पढ़ना हम सर लोग तो भूल गए थे। ठीक है, हाँ बोलो। सर तो ये जो ब्यूट 3 इनाइल बना है वो किससे बना है? ये ब्यूटीन से बना है। ब्यूट 1 इन जो है ना उससे बना है, ब्यूटीन से। हाँ तो पहले वो ब्यूट 1 ही नहीं होगा बट फिर बाद में वो ब्यूट 3 इनाइल हो जाएगा। हाँ, पहले ये ब्यूट 1 इन ही है। दिस इज नॉर्मल ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन बोले इसको या सिर्फ ब्यूटीन बोले, इज द सेम थिंग। और ये बना है इसी से। क्या हुआ? क्या क्या? नहीं वो खैर कोई बात नहीं है, वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं हम लोग। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, दैट डजंट मैटर। ठीक है, जिन लोगों को पता है उन लोगों को मुझे एक्सप्लिसिटली बताना पड़ा कि इधर से नहीं काउंट करेंगे, उधर से नहीं करेंगे, इधर से करेंगे। तुमको नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, गुड। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। दैट इज आइसो कंपाउंड्स। ठीक है, नहीं नहीं उसी में। ठीक है, आइसो कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? आइसो कंपाउंड्स का मतलब होता है you have a system like this, CH3 carbon CH, this is again bonded to CH3, and you have some CH2s N attached to it, and then you have a valency at the end. The general format is going to be look like this for iso compounds. ठीक है, and this is referred as, ये 3 तो रहेंगे ही रहेंगे, यहां पर जितने n है तो n+3। ठीक है, आइसो n+3 आई आई। ठीक है, व्हाट डज दिस मीन? अब जैसे यहां पर n की वैल्यू मैं 1 रख देता हूं। ठीक है, तो 1 हो गया +3 4 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटाइल। समझा? n की वैल्यू अगर 2 कर देते हैं, इफ इट इज लाइक दिस CH CH3 CH2 CH2 एंड यहां से ये बॉन्डेड है, तो इट इज गोइंग टू बी व्हाट? आइसो पेंटाइल। ठीक है, ये होता है स्टैंडर्ड नेमिंग ही है ये। आइसो इज स्टैंडर्ड नेमिंग, IUPAC नेमिंग। ठीक है, सेकेंडरी अभी यूज करने वाले हैं, दैट इज नॉट IUPAC, दैट इज जनरल नेमिंग। ठीक है, बट उस जनरल नेमिंग को भी
IUPAC में एज इट इज एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू सी सेकेंडरीज एंड आइसोज एंड नियोज मल्टीपल टाइम्स इफ वी आर डीलिंग विथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। सॉरी आइसो वापस बताओ ना। देखो आइसो का स्ट्रक्चर क्या है, आइसो में है एंड कार्बन से आपका हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है, एंड कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है एंड देन दूसरे एंड के लाइक पेनल्टीमेट कार्बन पर यू हैव अ मिथाइल अटैच्ड टू इट। इज दैट ओके? अबे n है नंबर ऑफ CH2 जो यहाँ पे है चेन में, ठीक है। तो n अगर आपका 2 हो गया तो 2 + 3 क्या हो गया 5, 5 का नाम क्या होता है पेंट, तो वो पेंट लेकर के आना है आपको। 4 अगर है तो हेप्ट हो 7 हो जाएगा, 7 का मतलब हेप्ट, तो हेप्टेनाइल, हाँ हेप्टाइल लेकर के आना है आपको। इज दैट ओके? ठीक है, वो होता नहीं है, वो मैंने डाल के बना के रखा है सो दैट आपको बता सकूं। आप भी नोट करके रखोगे तो आपको भी फटाफट देख के पता चलेगा, समझ में आ जाएगा, इसके लिए मैंने बना के रखा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी नेमिंग, सेक compounds. सेकेंडरी में क्या होता है कि यू हैव अ चेन ऑफ कार्बन, जो भी हो, जैसे ब्यूटेन हो गया, ठीक है। ब्यूटेन के इस कार्बन से बेसिकली हटेगा, आइदर इस वाले से हट सकता है और ये एंड के जस्ट पहले वाले से कार्बन से हटता है, एंड से ना हट करके एंड के जस्ट पहले वाले कार्बन से, सेकेंड लास्ट कार्बन फ्रॉम एनी एंड, ठीक है। इट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेरिवेटिव, ठीक है। सेकेंड वाले से, एंड से सेकेंड वाले से होता है, निकालते हैं हाइड्रोजन, एंड दैट इज व्हाई द नेम इज सेकेंडरी, दैट्स ट्रू, ठीक है, नॉट प्राइमरी रादर सेकेंडरी, ठीक है। सो इस वाले से अगर निकालते हैं तो हमारा ये बनेगा CH, CH2 and CH3. This is going to be called as secondary butyl. हाँ, CH3, CH2, 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 3 3 6, ठीक है। इसमें से एक हाइड्रोजन निकला और हाइड्रोजन निकल के बनाता है ये CH2, 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 CH and CH3. This is going to be secondary hexyl, ठीक है। Clear till this? हेक्साइल लिखे तो हम है, हेक्साइल है, बाकी तुमको जो इच्छा है पढ़ लो। नहीं, तुम्हारी जो इच्छा है पढ़ लो, तुमको एक्स नहीं दिख रहा है वो, एक्स्ट्रा ही पढ़ते रहते हो ना, गुड। Okay. Next one is tertiary. टर्सरी कार्बन से निकलता है। अच्छा देखो, एक चीज और समझ ले हम लोग यहाँ पे, सेकेंड वाले के अलावा कहीं और से निकलेगा ना, यू डोंट हैव एनी जनरल नेम्स फॉर इट। जैसे हेक्सेन में फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन,
थर्ड या फोर्थ से निकलता है, यानी सॉरी थर्ड से निकलता है, तो ये इस तरफ से थर्ड हो जाएगा, दूसरे तरफ से। इसके लिए हम लोग को कोई जनरल नेम नहीं होता है, ठीक है। वैसे सब्स्टिट्यूएंट्स को वी हैव टू डील विथ IUPAC नेमिंग ओनली, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, ठीक है। तो मतलब अगर जनरली दिमाग में कभी कभार आ जाएगा आपके कि सर उसके बाजू वाले से निकलेगा तो क्या बोलेंगे, उसको कुछ जनरल नेम नहीं देते हैं, दैट हैज टू बी डेल्ट विथ IUPAC। नो नेमिंग, IUPAC हैज प्रोविजंस फॉर दैट, ठीक है। ये जनरल अभी बता रहा हूं, ठीक है। जिनके भी जैसे पुराने टाइम में जब कम थे कंपाउंड तो हम लोग जनरल नेमिंग पैटर्न यूज करते थे, उस समय के कुछ वर्ड्स हैं जो एज इट इज IUPAC में ले लिए गए हैं, ठीक है। उनका भी हमको पता होना चाहिए होता है, अदरवाइज कुछ कंपाउंड्स के नेम हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सी रिसेंटली अभी ऐसा हुआ है जेईई मेंस में स्पेशली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, नॉर्मल अल्कीन के रिएक्शंस भी एक्चुअली IUPAC नेम में दे करके पूछता है, रादर देन स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के दे पुट इट इन नेम फॉर्मेट। सो बेसिकली आपका एफर्ट जो है वो डबल हो गया, पहले नेम से आपको स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना पड़ेगा और फिर स्ट्रक्चर के ऊपर रिएक्शन, अदरवाइज स्ट्रक्चर डायरेक्टली होता तो प्रोडक्ट्स मेनी अ टाइम प्रेडिक्ट कर पाना बहुत आसान हो जाता है। अभी वो चीज को थोड़ा मतलब एक ही क्वेश्चन में मोर देन वन कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए आपको नोमेनक्लेचर प्रॉपरली आता है कि नहीं, तो रिएक्टेंट का भी नाम IUPAC नेम में दे देगा और प्रोडक्ट का भी नाम IUPAC नेम में दे देगा। सो दैट विल कॉस्ट यू टाइम एंड ऑब्वियसली आपकी नॉलेज बेस भी चेक हो जाती है कि आपने सही से पूरी चीजें करी हैं कि नहीं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट दे हैव स्टार्टेड डूइंग। मैं भी क्वेश्चंस जब कराने लगूंगा, बुक्स में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे दे आर गोइंग टू बी मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड, they are probably going to give you either bond line structure or condensed structure and going to ask you the questions as in what is going to be the product once a particular reagent is going to attack on it. but मैं अलग से जो चीजें प्रैक्टिस कराऊंगा उसमें मैंने नोमेनक्लेचर को लेकर के क्वेश्चंस बना रखे हैं, ठीक है, जिसमें वही क्वेश्चंस होंगे मोस्टली, बट you have to decipher it and then do the problem applying the concept you have learned. Is that okay? So ये बहुत ही आसान है yet बहुत difficult भी है. At times it will actually tease your brain, tear your brain, tease your brain. It will do everything with your brain. Tertiary compounds. टर्सरी कंपाउंड्स का मतलब होता है बेसिकली टर्सरी कार्बन जो होते हैं ना, टर्सरी कार्बन क्या होता है, वो कार्बन जो 3 और कार्बन से अटैच्ड हो, ठीक है। तो टर्सरी कार्बन से जब हम निकालते हैं हाइड्रोजन को, इट इज कॉल्ड टर्सरी सब्स्टिट्यूएंट और टर्सरी कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे वन ऑफ द एग्जांपल कुड बी, अ जनरल एग्जांपल कुड बी CH3 CH2N N C CH3 CH3 and H। इसमें से हमने निकाला हाइड्रोजन, it will become CH3 2 N C CH3 CH3 यहां से, ठीक है। This is going to be called as tort of N plus कितने कार्बन हो जाएंगे यहाँ पर, N plus 4 कार्बन 4, N plus 4 1 2 3 1 4 1 2 3 4 4 ही ना, पांचवा कहाँ दिख रहा है तुमको? हाँ 1 2 3, उसके n तो काउंट कर ही रहे हम लोग, तो टर्ट N plus 4 आइल, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी टर्सरी and this was again a common name used in prior days.
Let us take one example, maybe CH3, CH2, 4, CH3, CH3, and this. This is going to be named as third octanyl. Octanyl. Third octanyl. ठीक है. आइसो मतलब सिंगल. अब एक और नोमेनक्लेचर है जिसमें हमारा होता है नियो. नियो सब्स्टिट्यूएंट्स, नियो कंपाउंड्स. नियो कंपाउंड्स में अटैचमेंट्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं. This is neo N+4 I. इसमें क्या हुआ, इसमें भी टर्सरी कार्बन एक अवेलेबल है, ठीक है, या क्वाटनरी कार्बन बोल सकते हो अवेलेबल है. एंड यू हैव बट हाइड्रोजन जो निकल रहा है वो टर्मिनल कार्बन से निकल रहा है, ठीक है, टर्मिनल से निकल रहा है. इज दैट ओके? कहां से, कहाँ निकल रहा है? वो टर्सरी कार्बन से निकल रहा है. और ये टर्मिनल नहीं है. टर्मिनल कैसे है ये? टर्मिनल या तो ये होगा या ये होगा. ये कार्बन तो टर्मिनल हो ही नहीं सकता है. टर्सरी कार्बन कैन नेवर बी टर्मिनल. ठीक है. नियो कंपाउंड्स या नियो सब्स्टिट्यूएंट में द हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी लॉस्ट फ्रॉम टर्मिनल कार्बन and there is going to be a quaternary carbon present in the chain somewhere. आइसो कैसे होगा? आइसो वाले में क्वाटनरी कार्बन एब्सेंट रहेगा. क्वाटनरी कार्बन प्रेजेंट है तभी नियो है. ठीक है, क्लियर है? आइसो में क्या था? There was a secondary carbon present or tertiary carbon was present. Quaternary carbon was not present. यहाँ पे quaternary carbon is present. Most common one is basically यहाँ पर एक जब रहता है तो it forms neopentyl. ठीक है. अच्छा देखो यहाँ पर एक चीज डाइकोटॉमी है थोड़ी सी, बट सुन लो और समझ लो इस चीज को. ठीक है. मिथेन जब होता है इट फॉर्म्स मिथाइल, मिथ लेते हैं सिर्फ उसका. इथेन होता है सिर्फ इथ लेते हैं. ब्यूटेन होता है सिर्फ ब्यूट लेते हैं. प्रोपेन होता है प्रोप लेते हैं. पेंटेन होता है पेट लेते हैं. ठीक है. बट हेक्सेन ऑनवर्ड से इट्स नॉट जस्ट हेक्स, हेप्ट और ऑक्ट, वो एन लगा के लेते हैं. हाँ. अच्छा इसमें भी ये होता है, दोनों ही फॉर्मेट सही होते हैं अगर एन है, यानी अल्केन अगर है तो एन लिखो या ना लिखो, दोनों ही फॉर्मेट में सही रहेगा. ठीक है. बट कोहेरेंसी के लिए जनरली एन लगा के लिखना इज ऑलवेज गुड थिंग. बट जैसे ही इन आ जाता है देन यू हैव टू पुट, मैंडेटरीली पुट इन आई. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? वो लगाना मैंडेटरी हो जाता है. फाइन. इसका सबसे कॉमन मेंबर जो होता है, जो बार बार आपको देखने के लिए या यूज करने के लिए मिलेगा, दैट इज CH3, 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 CH2. दिस इज कॉल्ड नियोपेंटाइल.
pentyl. Is that okay? Very good. 2-3 चीजें और बतानी है, then I'll end today's lecture. नाम से रिलेटेड ही कुछ और चीजें हैं. कितना टाइम हुआ? Not. See, just have a look at these things. मीथेन से एक हाइड्रोजन हमने हटाया, ठीक है, इट फॉर्म मिथाइल. इससे एक और कार्बन एक और हाइड्रोजन अगर हम हटा देते हैं तो इट इज गोइंग टू फॉर्म समथिंग लाइक दिस, ठीक है. दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज मिथाइलिडीन. हाँ. सिमिलरली इथेन से अगर मैंने एक हाइड्रोजन निकाला, इट फॉर्म्स इथाइल. 2 निकालेंगे, इट विल बी इथाइलिडीन. दोनों एक ही कार्बन से निकलेगा. हाँ, किसी टर्मिनल से निकल सकता है. सो इट इज इथाइलिडीन. नहीं, किसी भी टर्मिनल से निकलेगा, बीच से निकलने लगेगा तो इट विल गिव सम अदर सेंस. क्या देगा सेंस? विल लुक एट देम. अलर्ट रहो. ठीक है. प्रोपाइल, सॉरी, प्रोपाइलिडीन. ठीक है. ओके, देयर इज वन मोर थिंग, समथिंग नोन एज विनाइल. इथीन जो होता है, CH2, दिस इज कॉल्ड इथीन. ठीक है. इथीन के कार्बन से अगर मैं हाइड्रोजन को निकालता हूं तो दिस बिकम्स CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड. This is known as vinyl. The common name for it is vinyl and it is very oftenly used. Ethene से एक हाइड्रोजन निकाला, it is going to be called as vinyl substituent. ठीक है. हाँ, अगला वाला निकालेंगे विनाइलिडीन. परफेक्ट. इधर से दोनों को निकाल दिया, इट विल बिकम विनाइलिडीन. ठीक है. एक और इसमें से एक और कॉमन चीज होती है दैट वी नीड टू नो. प्रोपीन जो होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. प्रोपीन से जब हम एक हाइड्रोजन निकालते हैं, वो भी CH3 एंड से. ठीक है. This becomes allyl, that is called allyl. CH2 double bond CH single bond CH2, this is allyl. ठीक है. और इससे एक और हाइड्रोजन निकाल लिया मैंने तो it will become allylidene. allylidene. Is that okay? Yes. चलेगा, आज के लिए रुक जाते हैं. और भी कुछ है इसमें, वो हम अगले लेक्चर में कर लेंगे. We'll continue from here in the next lecture.